तो ये हमारा नया चैप्टर है, न्यू पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ पेशेंट प्रैक्टिशनर। इसके अंदर वी आर गोइंग टू लुक एट द पेशेंट एंड practitioner diagnosis style. Every doctor has a specific style. What kind of style depends on the doctor. What style suits the doctor. ठीक है। अब हर डॉक्टर का अपना डायग्नोसिस का स्टाइल होता है। सम डॉक्टर्स इंक्लूड पेशेंट्स in the decision making. Some doctors do not include the patients. ठीक है। हम इनको क्या बोलते हैं, we will get to know, we will look at that further in the chapter. अभी हमें क्या समझने की जरूरत है कि हमारे जब डॉक्टर्स डायग्नोसिस कर रहे होते हैं, there are certain challenges that they feel. What are those challenges? We can see three broader categories of that. सबसे पहला होता है diagnosing the patient. It is a challenge. Why? Because sometimes हमारे पेशेंट्स डू नॉट टेल अस द फुल इंफॉर्मेशन। जब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम वहां पे फंस जाते हैं। When we don't get enough information to diagnose our patient, then that leads to a misdiagnosis or a wrong diagnosis. All right? सेकेंड चीज क्या होती है जो कि एक चैलेंज होता है एक प्रैक्टिशनर के लिए या एक डॉक्टर के लिए। व्हेनेवर आई से प्रैक्टिशनर, प्लीज अंडरस्टैंड आई मीन अ डॉक्टर, एंड व्हेनेवर आई से अ डॉक्टर तो उसको प्रैक्टिशनर आपके एग्जाम में भी इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर टू जो चीज हमारे पास होती है प्रॉब्लमैटिक, जो चैलेंज होती है वो ये होती है दैट द प्रेजेंटिंग एंड presenting the diagnosis to the patient. It is very important the way the doctor tells our patient about the diagnosis is very important. कोई बता सकता है क्यों? Because जिस तरह से आपको आपके डायग्नोसिस प्रेजेंट किया जाएगा, that will decide the third thing of how you as a patient are going to cope with it. Either you're going to take the doctor seriously or you're going to say bahar mein jaye doctor, I don't want to take no medicines, I don't want to take the treatment at all, because आपको जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है that may come as a shock, और शॉक में जब इंसान होता है तो ऑटोमेटिकली वो रिबेलियस हो जाता है। सो अभी इनिशियली हम लोगों ने क्या याद रखना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थ्री थिंग्स दैट व्हेनेवर अ डॉक्टर इज मेकिंग अ डायग्नोसिस, it is important for to highlight these three challenges, and these three challenges are: number one, how the patient presents the symptoms and what kinds of symptoms are presented in order for the doctor to make a diagnosis. फिर हमारा डॉक्टर उस हमारा डॉक्टर उस डायग्नोसिस को कैसे एक्सप्लेन करता है, प्रेजेंट करता है, इन्फॉर्म करता है हमारे पेशेंट को। एंड नंबर थ्री, हाउ डज द पेशेंट रिसीव इट, वो कैसे रिसीव करता है। अगर हमारा पेशेंट इंफॉर्मेशन फुली नहीं देता हमको, that leads to a wrong diagnosis, and because of which हमारे पास wrong treatment start होना शुरू हो जाती है। जब wrong treatment start शुरू हो जाती है, then that is again a problematic situation. Why? Because जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है आपको वो medications दी जा रही हैं, वो treatment दिया जा रहा है, and maybe that treatment has its own side effects, and maybe those side effects are not so good, not so fun. Obviously side effects हैं, fun तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी, right?
They're not something that are pleasing, because वो induced होते हैं. आप जब medication खा रहे हैं तो वो medication के side effects है. आगे चलते हैं. The first step requires the patient to disclose information. Obviously बात है, सबसे पहले तो the doctor will not come into you. ऐसे नहीं होगा कि वो डॉक्टर आपके पास आपके घर में आ जाए और बोले ओ हमने सुना कि आप बीमार हैं, हमने कहा कि हम आपको घर पे आके देख लें. नो. So the first step for any treatment to start, or for any diagnosis to start, for the doctor to start the diagnosis, the first step is for the patient to actually disclose information. अगर patient अपनी information disclose नहीं कर रहा, information से मतलब क्या है? Symptoms. अगर हमारा पेशेंट अपने सिम्टम्स नहीं बता रहा, या फुली नहीं बता रहा, या शेयर नहीं कर रहा, then that becomes a problem. Number 2, this sometimes is very tricky, of course, क्योंकि अगर आपको फुली नहीं बता रहा तो आप हाफ डायग्नोसिस करेंगे. अगर शेयर नहीं कर रहा तो रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाएगा. ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा सारा कुछ. एंड ये भी हो सकता है कि चूंकि हमारा पेशेंट हम लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन या हाफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो उस वजह से हमारे जो सिम्टम्स हैं वो एग्रीवेट हो जाएंगे और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. Participants are unable to actually describe their situations. This is also one of the reasons. अब let's say इसके अंदर मुझे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो समझ आती है वो आती है ऑफ अ डेंटिस्ट. So there was this one time जब मेरे दांत में दर्द हो रहा था, and I could not explain my doctor कि मुझे दर्द किस तरह से हो रहा है और कहाँ हो रहा है और किस नौयत का हो रहा है. What kind of pain am I feeling? So my doctor asked me certain questions. Is it a continuous pain? I said no. Is it a pulsating pain or is it a throbbing pain? Now pulsating, throbbing, ये दोनों अलग अलग categories of pain हैं. इनकी characteristics बहुत change करते हैं. So I, as a patient, need to have good information about my pain and symptom in order for me to explain my problem, explain my symptom to my doctor. ठीक है? So many of times what happens is कि our patients are not equipped enough to actually describe their situations or their symptom to the doctor. This leads to a wrong diagnosis. Let's say मैंने अगर अपने डॉक्टर को बता दिया होता, अपने डेंटिस्ट को बताया होता कि it is a pulsating pain, तो उसको ऐसा लगता कि maybe it is a pulsating pain because my roots of the teeth have rotten, and वो शायद उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता. Of course उसके साथ वो multiple checkups and tests करता. But what happens is there are chances that because I shared the wrong symptom or the wrong information, that may have led my doctor to making a wrong decision or a wrong diagnosis. This may be done. This may be due to multiple reasons. अब मुझे क्यों नहीं पता as a patient why and what are the pointers that may lead to sharing the wrong information or not being able to share the information with my doctor. There are 4 main reasons for that. Number 1 being when the patient is critical of the doctor. I don't believe in my doctor. I don't feel my doctor is competent. उसकी capability पे मुझे शक है. I feel my doctor is not competent enough. I don't believe in my doctor. I don't believe in the doctor's treatment and medicines that are prescribed. Number 2, the patient ignores the doctor's advice. अब obviously बात है, if I am critical of my doctor, then I will not take his advice seriously. मैं कहूँगा ये ऐसे ही है, ये बस ऐसे ही पास होके आ गया है, इसको MBBS में कुछ भी नहीं आता था, ये बस धक्का मार के पास हुआ है और ये डॉक्टर बन गया है. Now I don't think that this doctor's advice is worth following. Number 3, when the patient wants a diagnosis, a specific kind of diagnosis,
जो उसका डायग्नोसिस नहीं है। अब वो डायग्नोसिस क्यों चाहता है? जैसे हम साइकोलॉजिस्ट के साथ ये यूजुअली होता है दैट स्टूडेंट्स कम इन and they start acting as if they have some learning disability. For example, कुछ बच्चे ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं जैसे उनको डिसलेक्सिया है, कुछ बच्चे ऐसे एक्टिंग करने लग जाते हैं जैसे उनको डिसकैलकुला है। क्यों? बिकॉज दे वांट a diagnosis so that this will help them in getting extra time in their A levels। ये भी होता है ना। So again इसी तरीके से हो सकता है कि when someone wants a specific diagnosis to either fit in with the crowd, मैं क्राउड के साथ फिट इन होना चाहता हूं, मैं कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस चाहता हूं कि मुझे मिल जाए बिकॉज दैट्स द न्यू हिप थिंग। सो अगेन ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इस वजह से भी हमारा पेशेंट हम लोगों को गलत चीजें या उल्टी चीजें बताना शुरू कर देता है, रॉन्ग सिम्टम्स जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। एंड लास्ट चीज है कि जब मैं अपने डॉक्टर की कैपेबिलिटी पे शक करता हूं, आई डोंट बिलीव दैट माय डॉक्टर इज केपेबल ऑफ ट्रीटिंग। These are the 4 reasons due to which I am going to share the wrong information, not share my full information or symptoms with the doctor. So with that, we have a new study that we're going to see. Again, this is a reference study. So we will not have a lot of detail in this. हमारे पास ये एक reference study है. So reference studies, of course, अगर आप लोगों को याद हो, हमने ये बात करी है कि reference studies में आपको एम बताते हैं, क्या मालूम करना चाहते थे, थोड़ा बहुत सैम्पलिंग के बारे में बता देते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा सी डिटेल हमारे पास नहीं मौजूद होती। रॉबिन्सन इन वेस्ट 1992 की ये स्टडी है, इट्स अ रेफरेंस स्टडी। They wanted to investigate how much information does a patient share with the doctor। और इसको देखने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंटरव्यू और क्वेश्चनर का इस्तेमाल किया। They recruited 69 participants who were selected and a clinical trial was conducted. What is a clinical trial? An actual consultation where the participants had to share information with the doctor or nurse। ठीक है। सो ये एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल था जिसके अंदर हमारे पार्टिसिपेंट्स आर गोइंग टू मीट अ डॉक्टर और अ नर्स एंड दैट डॉक्टर एंड नर्स आर गोइंग टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, जहां पे हमारे क्वेश्चनर्स का इस्तेमाल होगा and हमारे doctor and nurses are going to ask certain questions in the form of an interview and the same questions will be asked through a computer। ठीक है, let's move further into the research। They were interviewed through a computer, they then are interviewed by a doctor or a nurse। तो सबसे पहले क्या होता है, 69 पार्टिसिपेंट्स को हम रिक्रूट करके लेके आते हैं, उनको एक कंप्यूटर दिया जाता है, उस कंप्यूटर पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को वो आंसर करते हैं इन व्हाट सेंस, दे एक्सप्लेन, they give all the information that they have regarding their symptoms to that computer and then a doctor or a nurse sees them और वो एक इंटरव्यू फॉर्म में उनको वही क्वेश्चंस पूछते हैं वापस से। The results show that the participants were more comfortable in giving information to the computer rather than a doctor or a nurse, and this actually happens in real life as well।
हम जब इंफॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं अपने बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं, हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं व्हेन वी हैव अ कंप्यूटर, वी आर गोइंग टू शेयर एवरीथिंग with the computer, we're okay with that. But whereas when it comes to a real person, हम लोग वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं शेयर करते, and that is again a problem. This showed that the participants do not give accurate or full information to the doctors, especially. अब यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा था? Especially when the nature of the illness is sensitive or embarrassing. PCOS, erectile dysfunction, ये वो चीजें होती हैं जो कि बहुत पर्सनल है. These are things that are very sensitive and along with that embarrassing as well for some people. Hence, जब ऐसा होता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डॉक्टर को देना हमें होती है जो कि embarrassing भी हो, पर्सनल भी हो बहुत, and sensitive in nature भी हो for people, we have seen and this research tells us कि वो इंफॉर्मेशन हम fully नहीं देते. We hide some parts. The information that will be provided to the doctor is based on what the treatment will be provided. When half or incorrect information is shared, then treatment is also faulty at times. गलत हो जाता है सब कुछ. ऑब्वियस ही बात है ना. ठीक है, let's move further. The information that is provided to the doctor, based on that the treatment will be provided. Of course, तो आधी इंफॉर्मेशन देने की वजह से हम लोग पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, हम लोग हाफ ट्रीटमेंट या क्वार्टर ट्रीटमेंट या डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, जितना भी सिम्टम है उतना उस हिसाब से हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं एज डॉक्टर्स. If the information will not be correct, then the diagnosis will also be faulty and not correct, and it will lead to a interpretation or mismanagement. This can happen when the patient hides or is not completely honest to the doctor. ये सिर्फ तब होता है. Patients are sometimes minimizing and sometimes exaggerating their symptoms. कभी कभार हमने देखा है ना, और ये चीज हमारे पेरेंट्स पे बहुत अप्लाई होती है. हाथ पे बहुत जोर की चोट लगी हुई है लेकिन वो कहते हैं नहीं छोटी सी चोट है. और हमारे छोटे भाई बहनों को हम लोगों ने देखा, और हम लोगों की भी आदत है, छोटा सा कट होगा हम उसके ऊपर पूरी पट्टी बांध के आ जाएंगे. जैसे ओ सर ये मेरा पूरा हाथ टूट गया है, आज मैं लिख नहीं सकता. सो अगेन दोनों एक्सट्रीम्स पे हमारे पेशेंट्स फॉल कर रहे होते हैं. देयर आर सम पेशेंट्स जो बहुत बड़ी चीज को मिनिमाइज कर देते हैं, देन देयर आर सम पेशेंट्स जो कि बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटी सी चीज को एग्जैजरेट कर देते हैं. इसको अगर हम देखें फर्दर तो इसके अंदर क्या होता है, अगर वो मिनिमाइज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है ट्रीटमेंट उस लेवल का नहीं मिलेगा. अगर वो एग्जैजरेट कर रहा है तो ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मिलना शुरू कर देंगे. सो अगेन दोनों चीजें हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है एज अ डॉक्टर भी. क्यों? क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट उसी बेसिस के ऊपर दे रहे हैं. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिसडायग्नोसिस, नेमली टाइप 1 जिसको कहा जाता है एंड टाइप 2 एरर्स. टाइप 1 एरर क्या है? जहां पे हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव डायग्नोसिस है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको हमने कह दिया कि आपको प्रॉब्लम है, बिकॉज आपने सिम्टम्स ऐसे बताए जो असल में कोई प्रॉब्लमैटिक सिम्टम्स होते हैं. एंड देन कम्स फॉल्स नेगेटिव, जहां पे आपको
प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है प्रॉब्लम, लेकिन हमने एज अ डॉक्टर कह दिया कि प्रॉब्लम नहीं है। और ये दोनों कहां से रूट हो रही है? इधर से। जब आप मिनिमाइज कर रहे हैं कोई चीज, तो आपको कोई चीज प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, इशू है, आपकी कोई हेल्थ इशू है, लेकिन आपने उसको इतना अंडर प्ले कर दिया कि हमने कह दिया कि ओ आपको तो कोई डायग्नोसिस मिल ही नहीं सकता बिकॉज यू आर परफेक्टली फाइन। वेराज असल में आपको डायग्नोसिस की जरूरत थी बिकॉज आपको कोई प्रॉब्लम थी। दूसरा, एग्जैजरेट कर दिया, प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतना एग्जैजरेटेड सिम्टम्स पता है कि हमने आपको कह दिया कि वो आपको शायद कोई प्रॉब्लम है और हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। False positive diagnosis is when the patient is given a diagnosis of being unhealthy, but the patient actually is healthy. Also known as type 1 error. याद रखिएगा, आपको वो ये इंटरचेंजेबली एरर जो है वो यूज कर सकता है, आपको सवाल दे सकता है कि व्हाट इज टाइप 1 एरर, एक्सप्लेन। जरूरी नहीं है वो आपको फॉल्स पॉजिटिव डायग्नोसिस पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 एरर मींस फॉल्स पॉजिटिव diagnosis, whereas false negative diagnosis क्या होता है is when the patient is given a diagnosis of being healthy, लेकिन वो healthy नहीं है, he actually or she actually has a diagnosis of a problem or has or is unhealthy, और इस तरह के एरर को हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। ऑब्वियसली बात है, बोथ दीज टाइप ऑफ एरर्स आर वेरी डेंजरस, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर सकते हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और मैं आपको किसी चीज की दवाइयां खिलाना शुरू कर दूं तो उसके साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आपको किसी दवाई की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, बट आई गिव यू नथिंग दैट कैन एग्रीवेट योर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, एंड ऑब्वियसली बात है जैसे स्टेजेस ऑफ इश्यूज होते हैं, स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकता है आप स्टेज 1 पे हो, बट बिकॉज आपको काफी देर तक डिले हो गया आपकी ट्रीटमेंट, तो आप स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 पे पहुंच जाए, तो अब उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड इट इज गोइंग टू हर्ट यू एज अ पेशेंट। बट आउट ऑफ बोथ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक जो होता है वो होता है मिसडायग्नोसिस, दैट इज द मोस्ट डेंजरस, द वन वेयर विच वी कॉल टाइप 2, जहां पे आपको कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई अनहेल्दी इशू है, और हमने आपको कह दिया कि आप परफेक्टली फाइन है, बिकॉज दैट वे आपकी जो अनहेल्दी है स्टेज, वो और अनहेल्दी स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। Whereas type 1 error की अगर हम बात करें, also when a patient is given some medication that they do not require, and this can alter your biological system. आपकी मेडिकल, ऑब्वियसली बात है, जब मेडिसिन अंदर जाती है इट्स केमिकल, केमिकल जाके अंदर कुछ ऑल्टरेशंस करेगी, तो वो ऑल्टरेशंस की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऑल्टरेशंस आपको हो रही हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। Due to these errors, the patients may not feel confident about a doctor and may hesitate to even taking medications in the future. That will be it. नया चैप्टर है, नई चीज है, we're going to build on this आहिस्ता आहिस्ता। See you guys in the next class. जहीं तक थी आज की क्लास, and खुदा हाफिज।